Good morning, all of you. I hope my voice video is clear. Type yes, type VC in comment box if it is clear. Voice and video, both the things are clear. Yes, good, good, good. So, welcome you all to this day 12. Yes, welcome you all to day 12 of English learning. Okay, are you able to hear me properly? Good. Yes. So, guys, yes, today we have started little bit late, just 1 or 2 minutes because the my computer is giving issue, somewhat issue. I said before, मैंने कहा था आपको कि कभी कभी होगा because we are meeting online technical issue आ सकते हैं. Okay, so technical issue may be there. Okay, no, it is showing. Just a minute, just a minute. Yes, sorry, day 13. I have placed here day 12. Sorry, day 13. Yesterday I was making PPT and it was day 12. So that's the reason there is a day 12, right? Yesterday was a day 12, right? And I put there day 12. So that is the reason there was a confusion. Okay. So welcome to day 13. Okay. Today we have when I was starting the meeting, that time that laptop is giving, you know, somewhat problem and that is not getting started. So but after 2 minutes 3 minutes that got start, so that's okay, no problem. So I'm trying from 6:45 but it started exactly on 7. Good. So can we move ahead, guys? Okay, my voice video clear? Good. Okay, so everybody is there, who those are regular, all people are there. 35 people are 36. Good. Improving. The number is improving. Good. Yes. So, my first question for all of you, are you guys practicing every day? Are you guys practicing every day? If yes, how you are practicing? Just tell me in one word how you are practicing. What things you are doing every single day. क्या करते हैं आप? ऑडियो सुनते हैं, यू नो, क्या करते क्या है? रीडिंग बुक्स. ओके. ओके. बाकी के लोग क्या करते हैं? What you do, how you practiced English language, how you practice speaking skill. Listening audio, good, good. Speaking loudly, okay. Speaking loudly, but where? At home, in front of mirror, good. Video, I told you uh, to make one video and listening audio, also book. Communication with others, listening audio. Gaur Gopal Das, good. Yesterday is very hectic, so I can't do anything. Okay, Artiji, no problem. Okay, I got few of your videos. Okay, I got Jitni sir, I got your video. और कुछ लोगों के वीडियो हुए मुझे दिखे हैं, बट आई हैव नॉट सीन इट येट. ओके. हाँ, यस, वन मोर थिंग. कुछ लोगों के डोनेशंस मुझे आए हैं कल, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दैट. कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि नाम नहीं बताना है, सो आई विल नॉट शो देयर नेम्स. बट आप लिख रहे हैं, आप अगर डोनेशन भेज रहे हैं, सो काइंडली राइट डाउन देयर लाइक इट्स फॉर डोनेशन, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे पेमेंट्स आते हैं गूगल पे पे और फ़ोन पे पे, सो आई वाज कंफ्यूज
कि किसका है. So kindly write down over there that it's donation, so that it will be helpful for me. Okay. बिटवीन जर्मन क्या है? प्रैक्टिस इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती है. ओह, सो यू आर ऑल्सो लर्निंग जर्मन, वेदांग, वेदांग फडनीस. गुड, दैट्स ऑसम. हमें भी जर्मन सिखा दो भाई. वेदांग जी, हमें भी जर्मन सिखा दो. सबकी क्लास ले लो एक बार, ठीक है? ओके. यस यस, लेट्स मूव. ओके. So today we are going to learn about using may and might. Okay, using may and might and must. Okay, today we are going to learn about using may, might, and must. Okay, how many of you heard about this three word may, might, and word must? How many of you heard about you may, might, and must? मस्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मस्ट भी हम देखने वाले हैं. ओके. यस एवरीबॉडी. गुड गुड गुड. सो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि मे माइट और मस्ट हम कब कब किस किस सिचुएशन में यूज करते हैं. यू मे heard about may, might, and must, right? You may heard about it. You may have heard about it. Okay. Now, so step by step मैं आपको बताऊंगा what we are going to cover. We will clear the confusion between the both. बहुत से लोगों को ये confusion है कि कहाँ पर मुझे may use करना है, कहाँ पे मुझे might use करना है. Okay. तो we will sort it out this confusion. दूसरा ये है कि उसका यूज परफेक्टली कहाँ पे करना है हमें, इसके बारे में हमें कंफ्यूजन होता है बहुत सी बार. सो दैट वी विल गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. एंड देन ग्रामर बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या ग्रामर है. एंड यूजिंग मे हैव एंड माइट हैव, मे हैव और माइट हैव हमें कहाँ पे यूज करना है. ओके. सो आर यू रेडी गाइज? एक्साइटेड? Oh yes, yes, of course. I'll make it full screen so that you will get it perfectly. Just a minute. Just a minute. Okay now? Is it okay? Is it okay? Full screen? Good, 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 good. Good. So, two, three things you have to do every day, guys. Listen at least one video of Gaur Gopal Das or any native speaker which you like. Okay. Sadhguru hai. There are two, three peoples. Okay. So that will help you to construct sentences. That will help you to, improve your listening skill. Okay. Read at least five lines. Okay. Read at least 5 lines. 5 lines. Just 5 lines of any book or any, like any message or any, we can say, you can open Wikipedia, you can open anything and read 5 lines at least. Okay. So reading plus listening, both the things will be there. And then write 5 lines. जो भी आपके दिमाग में आता है, मैंने कल ही बोला था, जो भी आपको लगता है, जस्ट 5 लाइन्स, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, कुछ ना कुछ लिखिए एवरी सिंगल डे. भले ही आप स्टार्टिंग में स्पेलिंग गलत लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आपने क्या लिखा है. ओके. जस्ट लिखिए. ओके. एंड देन प्लीज टेल अस होता है, पोकोफोन प्लीज टेल अस ऐसा होता है. प्लीज टेल अस दैट विच इंग्लिश मूवी इज इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसा होगा ये सेंटेंस आपने जो लिखा है अभी, वो कैसा होगा? प्लीज टेल अस दैट विच इंग्लिश मूवी इज इजी टू अंडरस्टैंड. अभी इंग्लिश मूवी कौन सा इजी है? आई मुझे भी याद नहीं है नाम, है ना.
So I will give you few book name, but I have some books. So I will give you today in the group. I will give you the group books. Okay. So that books are easy to understand, and we you can start from that book. Okay. Volunteers, have you put the message in the group? Because there are few people still have not joined. Let me see. Good. कुछ विद्या मैडम ने डाला है मैसेज. गुड. गुड. थैंक यू एवरीबॉडी. ओके. SLS2 में कौन लोग है? SLS2 ग्रुप में जो है वो भी वहां पे मैसेज डाल दीजिए. ओके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स गो अहेड with the slide. Okay. Read Sudha Murthy. Yes, absolutely right, Swati ji. Absolutely right. Sudha Murthy ji के जो बुक्स है दैट आर रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. उसका नाम मैं आपको बताता हूँ. मेरे पास है बुक शेल्फ में, मुझे देखना होगा. हाँ. टाइम स्टॉप्स एट शामली. टाइम स्टॉप्स एट शामली. Okay, I will send you link, or I will send you the photo of that group. Okay, that book, so you can start reading that book from today. So it will easy for you. Okay, बहुत easy. उसमें language है. Time start at Shamli. Read सुधा मूर्ति का book है वो. हाँ. Right, you are absolutely right, स्वाति जी. Okay, so वो book easy है. That book are little bit easy. Okay, so when we use may or when we use might. Okay, so we use may or might to express possibilities. किसी चीज की पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए हम मे या माइट का यूज करते हैं. ओके. लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, और ध्यान रखिए. अगर हमें किसी चीज की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करना है, यानी पॉसिबिलिटीज को बताना है, सो दैट टाइम वी यूज मे और माइट. बट इफ वी आर यूजिंग मे, सो possibilities is more, and if we are using might, that time possibilities is less. Are you getting the things? अगर किसी चीज के होने की संभावना अगर ज्यादा है, सो दैट टाइम वी शुड यूज मे. ओके. और संभावना अगर कम है, सो वी शुड यूज माइट. वन मोर थिंग, मे का पास्ट टेंस माइट है. मे जो है उसका पास्ट टेंस माइट है. बट आज अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आप दोनों भी यूज कर सकते हैं. बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि आप दोनों भी यूज कर सकते हैं. मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं. ओके. बट उसके कुछ रूल्स है दैट आई विल शेयर विथ यू इन नेक्स्ट पीपीटी. है ना? उसके क्या रूल है, कैसे आपको वो ध्यान रखना चाहिए. ओके. सो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा. यहाँ तक आपको क्लियर है दैट इफ द पॉसिबिलिटीज इज हाई, मोर है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, दैट टाइम यू शुड यूज मे. अब अगर पॉसिबिलिटीज कम है किसी चीज की, तो आपको माइट यूज करना है. जैसे कि ही मे कम. ओके. वो आ सकता है. ही मे कम. प्रोबेबली वो आएगा, बट शायद ही वो आएगा. वो शायद ही आएगा. ही मे कम, शायद वो आएगा. ओके. बट ही माइट कम, वो शायद ही आएगा. शायद ही वो आएगा. यानी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? लेस हो गई. आर यू गेटिंग द थिंग्स गाइस? पॉसिबिलिटीज अगर लेस हो गई, सो दैट टाइम यू शुड यूज माइट. ओके. परमिशन के लिए मे यूज होता है ना, जैसे मे आई टेक अ पेन. यस, वो आगे है, आगे है. ओके. सो यू विल आगे एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं. ठीक है, आगे आगे बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज. ओके. पॉसिबिलिटीज किसी चीज की. दूसरी क्या चीज है? फैक्ट्स अगर आपको बताने हैं, जैसे कि फैक्ट, जैसे कि एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज एंड फैक्ट्स. जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस ध्यान में रखिए आप, सो दैट यू विल गेट द आइडिया. सेंटेंस अगर आपके ध्यान में है तो. ओके. सो सेंटेंस क्या है? ही मे लूज द जॉब. ही मे लूज द जॉब. उसका जॉब जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल. ओके. ही मे लूज द जॉब.
शायद उसका जॉब जा सकता है, शायद। ओके, रीजन क्या है, वी डोंट नो। ओके, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। उसका जॉब क्यों जाएगा पता नहीं हमें, बट ही मे लूज द जॉब। ओके, ही मे लूज द जॉब। अभी दूसरा सेंटेंस क्या है वो देखो, ही माइट लूज हिज जॉब इफ ही इज ऑलवेज लेट। यहां पे क्या है, एक फैक्ट के साथ जोड़ा गया है उस सेंटेंस को। फैक्ट क्या है कि अगर वो लेट आएगा, इफ ही इज ऑलवेज लेट, जैसे कि वो हमेशा अगर लेट आएगा, सो डेफिनेटली उसका जॉब जाएगा, है ना। ही माइट लूज हिज जॉब इफ ही इज ऑलवेज लेट। अगर वो ऐसे ही लेट आएगा, सो डेफिनेटली उसका जॉब जाएगा। सो यहाँ पे माइट जो है वो किसी फैक्ट के साथ जोड़ा गया है। ओके, कुछ लिखा है इन्होंने यहाँ पे, माइट यू हर्ड अबाउट इट, इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यू माइट हर्ड अबाउट इट, यू मे हर्ड अबाउट इट। ओके, दोनों भी यूज कर सकते हैं, हाँ, बट माइट इज करेक्ट। वाई, माइट और आगे है, जैसे मैं अश्मी बता रहा हूँ। ओके अश्मी जी, मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप। ठीक है, सो अभी पहला सेंटेंस क्या है, ही मे लूज द जॉब। वो जॉब, उसका जॉब जा सकता है, मगर रीजन क्या है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, वी डोंट नो क्या रीजन होगा। बस दूसरा जो सेंटेंस है वहां पे आपको क्लियरली रीजन पता है, ही माइट लूज हिज जॉब इफ ही इज ऑलवेज लेट। एक फैक्ट के साथ उस सेंटेंस को जोड़ा गया है। फैक्ट क्या है कि अगर वो रोज रोज लेट होगा तो उसका जॉब एक दिन जाएगा। ओके, ही विल लूज, ही माइट लूज, उसका जॉब वो लूज, यानी उसका जॉब जा सकता है, राइट। अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, सेंटेंसेस देखिए, तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा उस चीज का। ओके, वी मे गो ऑन अ वैकेशन, हम वैकेशन पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम वैकेशन पे, वी मे गो ऑन वैकेशन, पॉसिबिलिटीज है कि हम वैकेशन पर जाएंगे। बट आगे क्या है, देखिए दूसरी सेंटेंस में देखिए, वहां पे एक कंडीशन है, वहां पे एक फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है, वी माइट गो ऑन वैकेशन इफ आई गेट अ लीव। अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो हम वैकेशन पे जाएंगे। आर यू गेटिंग द थिंग्स। सो दो चीजें है यहाँ पे, एक एक जो है वो नॉर्मल सेंटेंस है जहाँ पे कोई रीजन नहीं दिया है आपको, जहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, और दूसरा जो है वहां पे एक फैक्ट जोड़ा है, दैट इज द रीजन वहां पे माइट का यूज हुआ है। पॉसिबिलिटीज, अगेन आई एम सेइंग यू, पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हाई है, राइट। आर यू गेटिंग द थिंग्स। आई मे बाय अ कार, मैं कार ले सकता हूँ। ओके, मैं कार बाय करूंगा, या फिर मैं पॉसिबिलिटीज है कि मैं कार लूंगा। इफ माई लोन गेट सैंक्शन, आई माइट बाय अ कार। अगर मेरा लोन सैंक्शन होता है, देन आई विल परचेस। ओके, यहाँ पे सेंटेंस को देखिए आप क्या है, तो वहां पे माइट का यूज कब किया गया है, अगर उसके साथ कोई फैक्ट्स जोड़ा गया है तो। ओके, सो ये दूसरी कंडीशन है पॉसिबिलिटीज में। पहली क्या है, हायर पॉसिबिलिटी, दूसरी क्या है, पॉसिबिलिटीज विथ फैक्ट, कोई फैक्ट को अगर आप जोड़ रहे हैं। सो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस अगर बना रहे हैं, सो इफ देयर इज एनी फैक्ट, सो यू शुड यूज माइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, माइट इज अ पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट इज अ पास्ट टेंस ऑफ मे। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपके ध्यान में आ जाएगा। आप अगर सुनिएगे, अभी ध्यान से सुनिए, तो आपको समझेगा वो। ओके, ही मे अटेंड द पार्टी, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। ही मे अटेंड द पार्टी, शायद वो पार्टी में आएगा। ओके, या आ सकता है, आएगा। ओके, ही मे अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करेगा। ही माइट हैव अटेंडेड द पार्टी बट ही वॉज इल, वो पार्टी में आ रहा था या आ सकता था, बट वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, द रीजन, ही वॉज इल, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अभी वो आ सकता था मगर वो नहीं आया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट टेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कहाँ पे आपको मे यूज करना है, कहाँ पे माइट यूज करना है, एक सिंपल रूल ध्यान रखिए। अगर वर्ब, जो वर्ब है, जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ब है, वो अगर पास्ट टेंस में है, यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, अटेंड, ATTEND, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, अटेंडेड, ही माइट हैव अटेंडेड। ओके, शायद उसने पार्टी अटेंड की होती, बट ही वॉज इल, उसकी तबीयत खराब थी। सो पास्ट अटेंडेड है, सो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। क्लियर है ये आपको? इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, सो यू शुड यूज मे। अगर पास्ट टेंस में है तो आप माइट यूज करेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ओके, कुछ लोग, यू नो, हर हर कोई किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है। फ्यू पीपल से कि माइट और मे, बोथ द थिंग्स यू शुड यूज, है ना, दोनों भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में भी। ओके, बट दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इफ द वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो यू शुड यूज माइट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है, आई मे बाय अ फोन टुमारो, शायद मैं कल फोन ले सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, है ना, खरीद सकता हूँ। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या है, आई माइट हैव बॉट अ फोन बट इट वॉज एक्सपेंसिव, मैं फोन खरीद रहा था या खरीद रहा था, बट इट वॉज एक्सपेंसिव, मैंने क्यों नहीं खरीदा, बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, बिकॉज वो एक्सपेंसिव था, दैट इज द रीजन आई हैवंट बॉट दैट, आई हैवंट बाय दैट। ओके, मैंने वो नहीं खरीदा। ओके, ये मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बट आई माइट हैव बॉट अ फोन बट इट वॉज एक्सपेंसिव, शायद मैं फोन खरीद लेता कल, शायद मैं फोन खरीद लेता, बट इट वॉज एक्सपेंसिव, वो महंगा था, दैट इज द रीजन मैंने वो बाय नहीं किया। क्लियर है अभी अश्मी? अश्मी, इज इट क्लियर टू यू? अश्मी, अदर पीपल, यस नो? ओके, सामने आपको और क्लियर होगा, और बहुत सारे इसमें मैंने ये ऐड किए हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, सेंटेंसेस ऐड किए हैं, सो यू विल गेट इट, डोंट वरी। अभी यहाँ पे आगे क्या है, मे हैव और माइट हैव। ओके, सो आई माइट हैव मिस्ड द जॉब इंटरव्यू। ओके, ये क्या है, ये पास्ट टेंस है, मिस्ड, ईडी, ईडी आया है, सो यू शुड यूज माइट हैव। ओके, आई मे हैव मिस्ड द जॉब इंटरव्यू, ये सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग है, कोई मुझे बताएगा? आई मे, ये माइट की जगह अगर मैं मे यूज करता हूं, सो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इस सेंटेंस में? कैन एनीबडी टेल मी? आई माइट हैव मिस्ड द जॉब इंटरव्यू। अगर यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, हैड का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। हम्म, यस स्वाति जी, आपको वो मिस करना पड़ेगा, मिस, MISSED जहाँ पे है वहां पे आपको करेक्शन करके एस कर, ईडी का ईडी आपको, यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब गुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, करना पड़ेगा हमें, इफ यू वांट टू यूज मे। ओके, बट बहुत से ऐसे ग्रामर पंडित है, ग्रामर पंडित इन द सेंस जो लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मे और माइट बोथ द थिंग्स आप यूज कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं। ओके, सो इतना कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, बट लेट मी टेल यू कि बाबा ऐसा है। ओके, सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। ओके, सेकंड सेंटेंस क्या है, इफ विराट हैड नॉट हिट अ सेंचुरी, इंडिया माइट हैव लॉस्ट द मैच। अगर विराट ने सेंचुरी नहीं हिट की होती तो शायद इंडिया उस मैच को गवा देता, माइट हैव लॉस्ट अ मैच, यानी ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट टेंस में। ओके, विराट, इफ विराट हैड नॉट हिट अ सेंचुरी, इंडिया माइट हैव लॉस्ट द मैच, यहाँ पे माइट हैव का यूज किया है, द रीजन बिकॉज सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। ओके, नेक्स्ट,
यहाँ पे है वो परमिशन। कोई तो पूछ रहा था मुझे अभी स्टार्टिंग में, किसी ने तो कहा था ना माइट हम परमिशन के लिए यूज करते हैं क्या। सो ये है परमिशन। मैं आप अभी आप बोलेंगे कि सर कैन भी हम यूज कर सकते हैं, कुड भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। कुड भी हम यूज करते हैं ना, परमिशन लेना है तो हम कुड भी यूज करते हैं, है ना। कैन भी यूज करते हैं, बट व्हाई वेयर वी शुड यूज कैन, वेयर शुड वी शुड यूज मे। ओके, जहां पे आपको मोर पोलाइट होना है, ओके, जैसे कि जहाँ पे फॉर्मली बात करना है, ओके, जैसे कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे यू शुड यूज फॉर्मल इंग्लिश, जहाँ पे आपको फॉर्मल इंग्लिश का यूज करना है, सो वहां पर आपको मे का प्रयोग करना चाहिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों चीजों में। अगर आप एक फॉर्मल जगह पर हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सो दैट टाइम यू शुड यूज मे फॉर परमिशंस, यू नो, गिव एंड टेक, यानी परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस इज यू मे हैव अनदर पीस ऑफ पिज्जा। आप अनदर पीस ऑफ पिज्जा ले सकते हैं, यू आर गिविंग परमिशन, यू मे हैव अनदर पीस ऑफ पिज्जा, एक और पीस ऑफ पिज्जा आप ले सकते हैं। ओके, what here this sentence is, what this sentence is expressing, this sentence is expressing the permission। okay, परमिशन दे रहे हो, मे आई गो टू रेस्ट रूम, मे आई गो टू रेस्ट रूम, रिक्वेस्ट, है ना, परमिशन ले रहे हैं आप, परमिशन ले रहे हैं, मे आई गो टू रेस्ट रूम, मैं मेरे रेस्ट रूम में जा सकता हूँ क्या। ये सेंटेंस जो है यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन आई गो टू रेस्ट रूम, कुड आई गो टू रेस्ट रूम। ओके, ये भी आप यूज कर सकते हैं, मगर मे जो है वो ज्यादा पोलाइट लगेगा। मे आई कम इन, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, मे आई कम इन, राइट। सुनने में हमें हमेशा मे सुना है हमने अभी तक, इसलिए हम जब बोलते हैं मे आई कम इन तो हमें सुनने में अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूं कैन आई कम इन, सो कैसा लगेगा आपको? आपने कभी सुना नहीं है कैन आई कम इन। ओके, क्योंकि ये मोर पोलाइट है। मे आई गो टू रेस्ट रूम, है ना, मे आई यूज द प्रिंटर, मे आई यूज द प्रिंटर, क्या मैं प्रिंटर का यूज कर सकता हूँ, राइट। इट इज मोर पोलाइट। मे का अगर यूज करेंगे आप, सो सामने वाले को, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, उसे समझेगा कि यू आर अ पोलाइट पर्सन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ओके, मे आई यूज योर मोबाइल फोन, may I use your chair, may I use your paper, may I use your table, may I use your pen. Okay, so may it's more polite. Are you getting the things? Yes, no? Kindly type in comment box yes, no. Anybody? क्या लिखा है इन्होंने? Let me yes, हाँ, रेस्ट रूम का मीनिंग। ओके, सो रेस्ट रूम इट्स, हम जो बाथरूम वगैरह जब बोलते हैं, सो बाथरूम वो बोलना अच्छा नहीं लगता। ओके, हम बोलते हैं हमें टॉयलेट, बाथरूम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। सो यूज रेस्ट रूम वर्ड। ओके, रेस्ट रूम मीन्स जब हम हमें अगर बाथरूम जाना है, अगर हमें बाथरूम का यूज करना है, सो दैट टाइम यू शुड यूज रेस्ट रूम। ओके, that is the word for that, similar word। okay, restroom, got it, got it। okay, restroom, may I go to restroom। okay, ठीक है, यस, मिल गया है मीनिंग बाकी लोगों को। ओके, नाउ may यूजिंग फॉर परमिशन, फॉर्मल परमिशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है, may I have your attention please, wow amazing, I love this sentence,
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं ये सेंटेंस भूल ही गया करीब करीब। वेनेवर आई, देखो जब भी आप किसी के सामने बात कर रहे हो, जब भी आप स्टेज से बात कर रहे हो, ये सेंटेंस मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। हाँ, रेलवे स्टेशन पे भी हम सुनते हैं ये सेंटेंस। राइट 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 चिटनीस सर। अभी क्या है, रेलवे स्टेशन पे भी हम गए नहीं पिछले 8-10 महीने से। मैं तो जाता ही नहीं हूँ रेलवे स्टेशन, बहुत कम जाता हूँ। I usually I travel by car, और usually I travel by बस। रेलवे पसंद ही नहीं मुझे बिल्कुल। सो बट कभी कभी जाता हूँ तो वो वहां पे आपको सेंटेंस सुनाई देता है रेलवे स्टेशन पे, ये सुना होगा आपने। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना, ऐसे बोलती है वो। ट्रेन आ रही है, जा रही है, फिर उसका आपको नोटिस मिलता है। सो ये सेंटेंस हम कब यूज कर सकते हैं? इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द स्टेज, और लोग मेरे सामने बैठे हैं, और अगर उनका वो अपने आप में बात कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है। सो आप वहां पे बोल सकते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या मैं आपका अटेंशन, क्या आप आपका अटेंशन देंगे मुझे, क्या आप मुझे मेरी तरफ ध्यान देंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ओके। ऐसे आप बात कर सकते हैं, सो वो सारे लोग आपके तरफ देखेंगे, ओके। अभी जूम पे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, और मुझे पता भी नहीं कौन अटेंशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, राइट। सो दैट्स द रीजन। हाँ, मुंबई, लोकल मुंबई में भी होता होगा। जो लोग मुंबई से हैं उनको पता होगा, राइट। हाँ, मे आई नो योर नेम प्लीज, हाँ ये भी हो सकता है, मे आई नो योर नेम। यस, गुड गुड। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं, है ना, ये अच्छा हुआ आपने याद दिया ऋतुजा जी। बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं, मे आई नो योर गुड नेम। गुड नेम वगैरह कुछ नहीं होता, सारे नेम गुड ही होते हैं। डोंट एवर से, डोंट एवर से गुड नेम, जस्ट से गुड, जस्ट से नेम, ओके। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मे आई नो योर गुड नेम। गुड नेम क्या है? व्हाट इज दिस गुड नेम? यानी बाकी के लोगों के नाम खराब है क्या? जस्ट से नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, और मे आई नो योर नेम। आपने मे का यूज किया, इट मीन्स ऑलरेडी यू आर पोलाइट, ओके। सो प्लीज वहां पे यूज करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ओके। वहां पे प्लीज भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने इतना भी बोला, मे आई नो योर नेम, सो ऑलरेडी यू आर पोलाइट। प्लीज कहोगे तो उससे भी ज्यादा वो ये हो जाएगा, ठीक है। सो वहां पे यू शुड नॉट यूज प्लीज ऑल्सो, ओके। यस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मे यूजिंग फॉर परमिशन, जहाँ पे फॉर्मल परमिशन हमें लेनी है वहां पे आप मे यूज कर सकते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, बॉस हो गया, इनके साथ अगर बात करना है हमें, सो यूज मे, ओके। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बात करना है तो यूज, आप कैन भी यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि कैन आई यूज योर बाइक, आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो बेटा, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, भाई मैं तेरी बाइक यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर बाइक। बट इफ यू आर सेम सेंटेंस, इफ यू आर सेइंग टू योर टीचर और योर बॉस, तो आप क्या कहोगे? सर, मे आई यूज योर बाइक, सर मे आई यूज योर बाइक, ओके। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी, ओके। मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी। अभी अगर आप अपने फ्रेंड से ऐसा ऐसा बोल रहे हो, मे आई ज्वाइन यू फॉर द मूवी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही पोलाइट होकर उसे ये कहना चाहते हो कि आप जो मूवी देखने जा रहे हो, क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर मे का यूज करोगे आप, तो उसे मोर पोलाइट लगेगा, ठीक है। जो लोगों को इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे। मे आई ज्वाइन दिस क्लास, राइट, ओके। मे आई, ओके, मे आई के सामने आप कुछ भी सेंटेंस यूज, मे आई के कुछ सेंटेंसेस लिखिए, चलिए। चलिए, फ्यू पीपल जस्ट टाइप फ्यू सेंटेंसेस ऑफ मे आई, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, मे आई के सेंटेंसेस टाइप कीजिए। हम्म। मे आई ज्वाइन द पार्ट, मे आई ज्वाइन योर, मे आई ज्वाइन द पार्टी, मे आई ज्वाइन योर ट्रिक, मे आई गेट, मे आई बोरो दिस पेन, मे आई ज्वाइन द लैब, ओके। May I use the bathroom?
बहुत से लोग, मैंने एक और चीज देखी है आपने ग्रुप में। ओके, मे आई यूज द बाथरूम। अभी कहा रोटी जी, मे आई यूज रेस्ट रूम यूज करना है हमें। ओके, बाथरूम की जगह पे हमें रेस्ट रूम यूज करना है, सो दैट वुड बी मोर, इट साउंड्स गुड। ओके, साउंड्स गुड। मे आई विजिट योर शॉप। हाँ, क्या मैं आपके शॉप को विजिट कर सकती हूँ? मे आई क्लोज द डोर। क्या मैं डोर क्लोज कर सकती हूँ? मे आई ज्वाइन द लॉन्ग ड्राइव। हाँ, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव, नॉट ड्राइविंग। मे आई ज्वाइन यू, ऐसा बोल सकते हैं आप। मे आई ज्वाइन यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मे आई ज्वाइन यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। मे आई लीव द मीटिंग प्लीज। क्या मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ? यस। मे आई अटेंड द यूर कोर्स, ऐसा नहीं होगा। मे आई अटेंड यूर कोर्स। अटेंड का स्पेलिंग भी आपने गलत लिखा है, ठीक है। अटेंड, द अटेंड ऐसा नहीं आएगा। मे आई अटेंड योर कोर्स। हाँ, कालिदास जी, यू शुड यूज रेस्ट रूम नेक्स्ट टाइम, दैट इट्स गुड। ओके, मे वी गो फॉर मार्केट। हाँ, मे वी गो फॉर मार्केट, यानी पॉसिबिलिटीज कम है, शायद हम जाएंगे शायद हम नहीं जाएंगे। सॉरी, पॉसिबिलिटीज हाई है। हाँ। मे आई ज्वाइन द क्लास। ओके, मे आई यूज योर लैपटॉप। मे आई टेक दिस फ्लावर। मे आई लेंड यू मनी। May I join the class? May I come in? May I come in, madam? Okay. May I switch? ED क्यों लगाया आपने? ओके। May I use your book? ओके, गुड गुड, बहुत सारे सेंटेंसेस है यहाँ पे। गुड। ओके। हाँ, वन मोर थिंग, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि फ्यू पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इंट्रोड्यूस देयर सेल्फ। खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सो एक दिन हम सेशन उस चीज पे लेंगे कि आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे। बिकॉज बहुत से लोगों को आई एम और आई वॉज इसमें भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। कितने लोग हैं जिनको आई एम, आई वॉज कहाँ पे यूज करना है, वॉज कहाँ पे यूज करना है, वर कहाँ पे यूज करना है, एम कहाँ पे यूज करना है, इज कहाँ पे यूज करना है। ये सारी चीजों में प्रॉब्लम है, हेल्पिंग वर्ब्स। कितने लोगों को इशू है इन चीजों में? होंगे बहुत से लोग, है ना, बहुत से लोग होंगे शायद जिनको इस चीज में इशू है। ओके, विल हैव अ डिफरेंट सेशन ऑन दैट। ओके, विल हैव अ पर्टिकुलर सेशन ऑन दैट। सो हम उसमें ये चीजें कवर करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो देखे कुछ ग्रुप में। सो बहुत सी लोगों को इशू है बोलने में, बहुत से लोगों को। सो डोंट वरी, आने वाले जो भी दिन हमारे बाकी है, 17-18 दिन जो भी है, उसमें हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू आर अनेबल टू कवर, विल डू समथिंग। ओके, डोंट वरी। May I travel by bus? May I travel by bus? चैतन्य जी, ओके। हाँ, जो भी वीडियो आपने बनाया है, जस्ट पुट इट डाउन, पोस्ट इट ऑन दी ग्रुप। ओके। मे आई गेट दिस पेन? राइट, जयश्री जी, राइट, मे आई गेट दिस पेन? एक्सक्यूज मी, मे आई टेक द कॉल? मे आई टेक अ कॉल बोलेंगे आप। द कॉल, ठीक है, इट्स डजंट साउंड गुड। मे आई टेक अ कॉल? ओके, may I take a call? May I go to, may I go for morning walk? Okay, जय श्री गुंडा, may I go for morning walk? May I go for morning walk? ठीक है। Okay, next, may I call you now? Now, no, because I am now, now I am in session. Okay. Okay, may I call you now? Okay, yes, good. May I take one more cup of tea? Sure, definitely. Okay, yes. Now let's see. Let's move ahead. Vaibhav, who is Vaibhav? Just a minute.
वैभव श्रोत्री, ओके ओके ओके, गुड। सो पॉसिबिलिटीज, यूजिंग में पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट क्या है, यूजिंग में पॉसिबिलिटी। जैसे कि हमने अभी तक वही देखा है कि मैं है तो पॉसिबिलिटीज क्या है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, अभी सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंसेस से आपको क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि बाबा कहाँ पर यूज करना है मुझे। ओके, ग्रामर की रूल्स आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस को याद रखेंगे आप, सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। ओके, शी मे एग्री विथ योर प्लान, शायद वो आपके जो प्लान्स है उससे एग्री हो सकती है। इट मी रेन दिस इवनिंग, आज शाम क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। ओके, मे, इट मे रेन दिस इवनिंग। अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूंगा इट मे रेन टुडे इवनिंग, सो क्या वो राइट होगा या रॉन्ग होगा? इज, इट इज द सेंटेंस मे आई लीव द मीटिंग। द आपने दो बार यूज किया है यहाँ पे जयश्री गुंडा। आप यहाँ पे देखो, मे आई लीव अ मीटिंग भी यूज कर सकते हैं, मे आई लीव अ मीटिंग बिकॉज टाइम इज ओवर, ऐसा। ओके, यस, यस। सो यहाँ पे इट मे रेन दिस इवनिंग, इट मे रेन दिस इवनिंग यानी आज शाम को शायद बारिश हो सकती है। यहाँ पे आप टुडे नहीं यूज कर सकते बिकॉज आप दिस इवनिंग के बारे में बात कर रहे हो। टुडे अगर यूज करेंगे सो दैट वुड बी रॉन्ग सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, दे मे बी लेट बिकॉज देयर कार क्रैश डाउन, शायद उन्हें देर हो सकती है बिकॉज उनकी जो कार है वो क्रैश हो चुकी है ना, कार उनकी टूट चुकी है, फूट चुकी है, जो भी क्रैश हो चुकी है। ओके, ही मे जॉइन इंग्लिश कोर्स, वह शायद ही इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेगा। ही मे जॉइन इंग्लिश कोर्स। ओके, ही मे जॉइन इंग्लिश कोर्स, शी मे जॉइन इंग्लिश कोर्स, दे मे जॉइन इंग्लिश कोर्स, आई मे बी रॉन्ग। ओके, आई मे बी रॉन्ग। ओके, बहुत सी बार हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, हम ये सेंटेंस बहुत बार यूज करते हैं अपने जब भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ। मे आई, मे आई, आई आई मे बी रॉन्ग। ओके, और मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, मे बी आई एम रॉन्ग यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मे बी आई एम नॉट राइट, मे बी आई एम नॉट राइट, मैं बोलता हूँ ऐसे बहुत सी बार, मे बी आई एम नॉट राइट अबाउट इट, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप गलत है। राइट, नेक्स्ट, यूज ऑफ माइट पास्ट फॉर्म, जैसे कि पास्ट फॉर्म है, माइट का यूज करें। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि माइट, वेन एवर यू आर यूजिंग माइट देर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, आई माइट नॉट एबल टू फिनिश माई होमवर्क, पॉसिबिलिटीज कम है, शायद मैं अपना होमवर्क खत्म ना कर पाऊंगा आज। लेकिन इसका मतलब क्या है कि होमवर्क खत्म करने के चांसेस ज्यादा है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर पाऊंगा। बट सेंटेंस में यह बोला गया है कि मैं शायद होमवर्क खत्म नहीं कर पाऊंगा, शायद, बट खत्म करने के चांसेस ज्यादा है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? कितने लोगों को ये सेंटेंस समझा, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर नहीं समझा है तो। यहाँ पे बहुत बारीकी से समझो, समझा है आपको, नहीं समझा है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। नो, गुड, ओके। देखिए, सेंटेंस ये है, आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश माई होमवर्क, शायद मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मेरा मेरा होमवर्क, ये सेंटेंस है। ठीक है,
सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। ओके, आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क जो है वो खत्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, अगर सेंटेंस में माइट है तो पॉसिबिलिटीज कम है वैसा होने की, उस चीज को होने की पॉसिबिलिटीज कम है। अभी वो क्या कह है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आज होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होमवर्क कंप्लीट ना करने की पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। सो इट आई आई विल बी आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, राइट। पॉसिबिलिटीज होमवर्क करने की ज्यादा है। यहाँ पे मे माइट का यूज है, इसलिए इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस राइट होने की संभावना कम है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई माइट गो टू द डॉक्टर। ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि आज मैं शायद डॉक्टर के पास जाऊंगी या डॉक्टर के पास जाऊंगा, है ना। आई माइट विजिट डॉक्टर, आई माइट विजिट डॉक्टर टुडे, और आई माइट गो टू द डॉक्टर टुडे। ओके, आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस टाइम, शायद इस बार मुझे आना पॉसिबल नहीं होगा, शायद मेरे लिए इस बार आना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, यू माइट हैव लॉस्ट द कीज, ध्यान दीजिएगा, यू माइट हैव लॉस्ट द कीज। ये कब होता है, अगर हम कहीं बाहर गए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ सो आपको समझ में आएगा। कहीं बाहर हम गए, वहां से हम घर पे आए, ओके, और हम घर पे आने के बाद लॉक, ताला ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढते हैं हमारे जेब में इधर उधर, और चाबी नहीं दिखती, और तुरंत हमारे साथ जो इंसान होता है वो एक सेंटेंस बोलता है। वो क्या बोलता है, हरौली तो नहीं है, क्या आपने चाबी गवा दी, क्या आपने चाबी गवा दी, हरौली तो नहीं, आपने चाबी गवा दी, क्या चाबी गुम कर दी आपने, है ना, गुम हो गई क्या चाबी, ऐसा पूछता है। तो दैट इज द सेंटेंस, यू माइट हैव लॉस्ट द कीज, शायद आपने चाबियां जो है, घर की कीज जो है वो गवा दी, है ना। यू माइट हैव लॉस्ट द कीज, समझ आया है आपको। अब यहाँ पे देखो, लॉस्ट ये क्या है, पास्ट टेंस है, दैट्स द रीजन यहाँ पे यूज किया है माइट। ओके, द शॉप माइट बी क्लोज्ड टुडे, जो शॉप है वो बंद हो सकता है। ओके, द शॉप माइट बी क्लोज्ड टुडे। ओके, यस, यूजिंग मस्ट, अभी जैसे हमने मे देखा, माइट देखा, अभी मस्ट देखना है हमें। मस्ट कब यूज करेंगे हम, मस्ट कब यूज करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी एक कोई चीज अगर आपको करनी ही करनी है, आई मस्ट कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे, मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है। ओके, आई मस्ट कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे, anything which you need to you know do, anything which you need which you have to do। okay, necessity, किसी चीज को, किसी चीज की जो म्हणजे हाई 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 पॉसिबिलिटीज है, हाई, ये बोल सकते हैं हम उसको। ओके, आई मस्ट कंप्लीट माई 30 days इंग्लिश का क्लास, और आई मस्ट कंप्लीट 30 days इंग्लिश क्लास, मुझे ये क्लास, ये 30 days का क्लास करना ही है। ओके, करना ही है, करना है एंड करना ही है। ओके, आई मस्ट डू होमवर्क राइट नाउ, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना ही है, वो भी अभी के अभी करना है। ओके, यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, हम बोलते हैं ना, मला आता उत्तर दे। ओके, मुझे अभी के अभी बताओ क्या सच है क्या झूठ है, मुझे अभी बताओ क्या सच है, ओके, क्या झूठ है। ये सेंटेंस हम बहुत से बार यूज करते हैं वाइल स्पीकिंग। ओके, मुझे अभी बताओ क्या है, तो ओके, मुझे अभी सच सच बताओ, दूध का दूध पानी का पानी, अभी सच बताओ मुझे। यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ, अभी बताओ, ठीक है। गेटिंग द थिंग्स, गारंटी, कॉन्फिडेंस, श्योर। हाँ, उसके लिए और भी एक अच्छा वर्ड है, बताता हूँ आपको आगे। ओके, नेक्स्ट, मस्ट मीन्स हाई पॉसिबिलिटीज, हाई हाई हाई, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज। ओके, ही मस्ट बी जेन्युइन, ओके, वो शायद ही एक जेन्युइन पर्सन होगा। ओके, मस्ट बी जेन्युइन, सॉरी जेन्युइन हो सकता है, यहाँ पे जीनियस लिखा है मैंने,
जीनियस भी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, ही मस्ट बी जीनियस. ओके, हम कहते हैं ना, किसी जगह पे हम गए, हमारा अगर मोबाइल फोन खराब हो गया, किसी मोबाइल रिपेयर करने वाले पर्सन के पास हम गए, और उसने अगर हमें 10 मिनट में मोबाइल अगर रिपेयर करके दिया फॉर एग्जाम्पल वापस, तो हम घर आके बोलते अरे बाप रे, उसने तो 10 मिनट में मोबाइल रिपेयर करके दिया, उसने तो 10 मिनट में मुझे मोबाइल ठीक करके दिया. सो हमारे जो फ्रेंड होते हैं या फिर हमारे घर वाले लोग, वो बोलते हैं हाँ वो होशियार होगा, शायद वो होशियार होगा, है ना. ही मस्ट बी जेन्युइन, जीनियस, सॉरी, ही मस्ट बी जीनियस, वो बहुत होशियार होगा. ही मस्ट बी जीनियस. ओके, और ही मस्ट बी जेन्युइन भी आप यूज करें. जेन्युइन यानी जो अच्छा इंसान होता है, सच्चा इंसान होता है, अच्छा और सच्चा. सो जेन्युइन यूज कर सकते हैं. ओके, यू मस्ट बी हैप्पी, आप खुश आज, है ना. यू मस्ट बी हैप्पी, आपको आज खुश, आप आज खुश लग रहे हैं. ओके, यू मस्ट बी हैप्पी. ओके, यू मस्ट बी हैप्पी, खुश है आप आज, राइट. शी मस्ट बी टायर्ड, वो शायद वो थक गई होगी. बट मस्ट क्या है, हाई पॉसिबिलिटीज है किसी चीज के. यू मस्ट बी हैप्पी, आप खुश होने के चांसेस ज्यादा है. यू मस्ट बी हैप्पी. शी मस्ट बी टायर्ड, वो थक जाने के चांसेस ज्यादा है. ओके, अरे अरे हम बोलते हैं अरे यार वो जल्दी सो गई, है ना, वो जल्दी सो गई. हाँ, तो फिर दूसरा इंसान, हाँ वो थक गई होंगी, है ना, हाँ वो थक गई होंगी. ओके, शी मस्ट बी टायर्ड. ओके, शी मस्ट बी टायर्ड. ओके, यू मस्ट हियर मी, मुझे आपको सुनना ही होगा. ओके, जैसे कि यू मस्ट हियर मी, पहले मुझे सुनो, हम बोलते हैं ना पहले मुझे सुनो. ओके, यू मस्ट हियर मी, लिसन टू मी. ओके, लिसन टू मी फर्स्ट. ओके, यू मस्ट अटेंड क्लास एवरी डे, आपको हर दिन क्लास अटेंड करना चाहिए, तो ही आपको चीजें क्लियर होगी. यू मस्ट अटेंड क्लास एवरी डे, तो ही आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होगी. आर यू गेटिंग द थिंग्स. जो हमने एक चीज हमने जो शुरुआत की है, कितने लोगों को वो चीज पसंद है. हम क्या कर रहे हैं अभी, जो सेशन है वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं और उसका लिंक आपको दे रहे हैं. सबको हेल्प हेल्प हो रही है उस सेशन उसकी. ओके, सबको हेल्प हो रही है गाइज, जो हम सेशन अभी यूट्यूब पे डाल रहे हैं और उसका लिंक आपको दे रहे हैं, है ना. सो अच्छी चीज है ये. ओके. ओके, लेकिन वो लिंक कुछ देर बाद ये हो जाएगा, है ना. बिकॉज व्हाट, जो लोग वीएमसी में है, जो लोग ऑलरेडी मेरे पहले एक प्रोग्राम में है, उनको इस सारे प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ऑलरेडी. ओके, और अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, सो यू शुड जस्ट मुझे आफ्टर 30 days, हाँ आफ्टर 30 days डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग. डोंट वरी. ओके, विल डू समथिंग, और वो हम रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे पूरे 30 दिनों का. डोंट वरी, पूरे 30 दिनों का नोट्स, पूरे 30 दिनों का रिकॉर्डिंग, दोनों चीजें आपको मिलेंगी. ओके, यस. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटेंस है आपके सामने, आपको मुझे बताना है पहले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, दूसरे में क्या यूज करेंगे, और तीसरे में क्या यूज करेंगे. देखो पहला सेंटेंस है, मैं जब कहूंगा आपको टाइप करना है तभी आपको टाइप करना है. ओके. ओके, यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस है, शी डैश हैव प्रैक्टिस्ड English dialogues a lot. Her performance was amazing. So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, she dash have practiced English dialogues as sorry dialogues a lot. Her performance was amazing. यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, must यूज करेंगे, might यूज करेंगे, और may यूज करेंगे. देखिए अभी कौन क्या क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूँ आपको. राजीव जी कह रहे हैं मस्ट, बहुत से लोग, महेंद्र पाटिल माइट, शशांक जोशी मस्ट, मीनल जी मस्ट, अश्मी मस्ट, आरती जाधव माइट, संजय कुमार मस्ट, जयश्री मस्ट, पूजा मस्ट, रमेश जी मस्ट, गौरी मस्ट, रेडमी माइट, बालाजी माइट, मंगला कुलकर्णी मस्ट, राजीव जी मस्ट,
एक जो आपने एक लिखा है ना, वहां पे ही ये देखो, कंफ्यूज मत होना कभी। ठीक है शशांक जोशी जी, आपको बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होना। एक तो सही बोलेंगे, एक तो गलत बोलेंगे। ठीक है, आपने पहले लिखा है मस्ट, अभी आप लिख रहे हो माइट। लेट मी टेल यू कि वहां पे क्या आएगा। ओके, बट जो जो भी हमने आंसर किया है, पहले से मेरी एक आदत रही है क्लास में, या जब भी मैं क्लास में पढ़ता, जब भी मैं कॉलेज वगैरह, पहले से मेरी एक आदत रही है। ड्यूरिंग एमबीए, व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए वगैरह, मैं जब कर रहा था तब मेरी एक आदत रही है पहले से। मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ, फिर अगर उसके बाद मुझे पता भी चलता है कि ये राइट सेंटेंस है, तो भी मैं उसे चेंज नहीं करता। बहुत सी बार एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने एक आंसर लिखा, एक किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा मैंने, और उसके बाद मेरे आजू बाजू वाले ने या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि अरे उसका आंसर ये नहीं वो है, लेकिन मैंने वो चेंज नहीं किया। यहाँ पे दो चीजें दिखती हैं। एक, आपकी इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये दिखती है कि आपकी इंटीग्रिटी, आप कितने ईमानदार हो। ठीक है, आपको पता चला कि उसका आंसर क्या है, बट आप पढ़ाई नहीं किए थे आपने, राइट। सो आपने किसी का सुनकर भी वो आंसर नहीं लिखा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि जब कोई देख रहा है आपको, तब ईमानदारी करना वो अलग बात है। ओके, बट कोई भी आपको नहीं देख रहा है और तब ईमानदारी करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। है ना, आपको कोई अगर देख रहा है, आपका मालक अगर आपका जो भी बॉस आपके सामने है, तो बॉस के सामने अगर आप अच्छा काम करोगे, वो तो नॉर्मल है, कोई भी करेगा। लेकिन आपका बॉस नहीं है, फिर भी आप अच्छा काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ओके, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम गलत है। खुद पे विश्वास रखो, चाहे आप गलत हो, डोंट वरी, खुद पे विश्वास रखो। ओके ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है मस्ट। ओके, शी मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड इंग्लिश डायलॉग अ लॉट, हर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, शी मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड। ओके, यस, गुड, समझ गया सबको। यस, हाँ, बोथ भी यूज, दोनों भी यूज कर सकते हैं आप, बट द राइट इज मस्ट। बहुत से लोग दोनों भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, दूसरा, आई कांट फाइंड माई वॉच एनीवेयर, आई डैश 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 हैव लॉस्ट इट। इसका एक सेंटेंस अभी अभी हमने लिया है, शायद अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप इसका आंसर बता सकते हैं, एक अभी अभी हमने सेंटेंस लिया है, आई कांट फाइंड माई वॉच एनीवेयर, आई डैश 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 हैव लॉस्ट इट। गुड गुड, बहुत से लोग माइट लिख रहे हैं, एक दो लोगों ने मे लिखा, बहुत से लोग माइट लिख रहे हैं। बिंदास लिखो, गलत भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो आप। ठीक है, लिखो आप, जो आपके मन में आता है लिखो। मे, ओके, कुछ लोगों ने माइट लिखा, कुछ लोगों ने मे लिखा, कुछ लोगों ने माइट लिखा, कुछ लोगों ने मे लिखा। चलो ठीक है, आपने लिखा, अच्छी बात है। सो इसका राइट आंसर है माइट। आपको बोला मैंने, आई माइट हैव लॉस्ट द कीज, बोला था मैंने, एक चाबी का एग्जांपल दिया था, आई माइट हैव लॉस्ट द कीज। ओके, वही यहाँ पे, आई कांट फाइंड माई वॉच एनीवेयर, आई माइट हैव लॉस्ट इट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा, फर्स्ट इज मस्ट, सेकंड इज माइट। ओके, थर्ड क्या है, यू डैश 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 बी किडिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल, यू डैश 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 किडिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल। कैन एनीबडी टेल। ओके, मे, ऐसा नहीं है कि पहला मस्ट है, दूसरा माइट है तो तीसरा मे होगा, है ना, ऐसा 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 अंदाज मत लगाओ आप। ठीक है, ऐसा अंदाज मत लगाओ। कितने लोग ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि पहला माइट है, मे है, सॉरी, पहला क्या है, मस्ट है, दूसरा क्या है, माइट है, तो तीसरा मे होगा, है ना, ऐसा नहीं है। ओके, सुरेखा पाटिल माइट। ओके,
आपको जो दिल से आवाज आ रही है या फिर जो भी आपको समझ में आया उससे बोलिए, आप क्या आ सकता है. So guys, third answer is might. Okay, you might be kidding. How's that possible? Okay, sorry. Not might, not might. Must. You must be kidding. You must be kidding. How's that possible? Okay, you must be kidding. How's that possible? Okay, आप डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, आप मेरी मजाक कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है. यू मस्ट बी किडिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये. ओके, गेटिंग द थिंग्स. ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा, डोंट वरी, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन टुडे ओनली. जस्ट गो थ्रू दैट सेशन अगेन. पूरा सेशन फिर से देखिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट. ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना है? वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, if you are sending me donations, so kindly write down that it is for donation, kindly send screenshots. Okay, and one more time, कुछ लोग जिन्होंने किया है कल डोनेशन, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल चिटनीस सर है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. और एक क्या नाम है उनका, उनका नाम एक सेकंड, 3-4 लोगों ने कल किया है. ओके, सो चिटनीस सर का नाम मुझे याद है उनमें से सिर्फ, और भी 2-3 लोगों ने किया है. आई विल डिक्लेयर द नेम्स टुमारो, और आई विल डिक्लेयर द नेम्स इन द ग्रुप. ओके, जिन लोगों ने कहा है कि मेरा नाम डिक्लेयर मत कीजिएगा, ऐसा भी बोला है कुछ लोगों ने, सो उनका नाम मैं नहीं डिक्लेयर करूंगा, डोंट वरी. ओके, सो जो हु दोज आर कंफर्टेबल, उनका नाम हम डिक्लेयर करेंगे. ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको देख के दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन आता है, राइट. सी, मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जब तक कोई और नहीं करता तब तक हम नहीं करते, ऐसे चीज है. ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ओके, सो गाइज, आई, शशांक जोशी इज अनदर वन. yes, शशांक जोशी, he has also paid. yes, okay, good. शशांक जोशी जी ने बोला है. ओके, हाँ, मैं सबके नाम वहाँ पे ग्रुप में हम डिक्लेयर करेंगे, एंड विल प्लान समथिंग फॉर दिस पीपल. ओके, जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, शायद हम उनके साथ जो हम जहाँ पे हम डोनेट करेंगे ये अमाउंट, वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर होगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. जहाँ पे भी हम ये अमाउंट डोनेट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगा. ओके, yes. So thank you so much guys, enjoy your day. I hope you have got a lot of things today. हाँ, बहुत से बार मैंने सुना है, people while speaking people use lot many. You have got lot many, so lot and many, you can't use both the things in one sentence. Okay, you if use lot or use many, दो में से कोई भी एक. ओके, लॉट मेनी नहीं होता कभी, लॉट और मेनी. बहुत से लोग, मुझे भी बहुत आदत थी पहले लॉट मेनी यूज करने की. यू शुड यूज लॉट और मेनी. ओके, I hope you have got many things today. I hope you have got lot of things today. Okay. I hope you have learned lot of things today. Right? Okay. I'm leaving session. Oh yes, Arya, we are also leaving the session. Thank you so much, guys. Love you all. Take care and God bless you. Okay. मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, फिर से वही एनर्जी के साथ, फिर से वही एंथुजियाज्म के साथ. ओके, सो कल कुछ नया सीखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.